चंडीगढ़ की राजनीति में पिछले दिनों बहुत उथल-पुथल रही है और चंडीगढ़ को उसकी नवनिर्वाचित मेयर मिल ही गई हैं। चंडीगढ़ की नवनिर्वाचित मेयर श्रीमती सरबजीत कौर के द्वारा आज सेक्टर 38 के कम्युनिटी सेंटर में अपने उच्च अधिकारियों के साथ एक रूबरू सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी तथा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर IAS अनिंदिता मित्रा जी, डिप्टी मेयर श्री अनूप गुप्ता जी, श्री महेश इंद्र सिद्धू के अलावा शहर के सभी उच्च अधिकारी जिनका शहर के रखरखाव, सफाई, बिजली व पानी के रखरखाव में अहम ओहदा है, मौजूद रहे। उन सभी ने अपने आप को मेयर मैडम से इंट्रोड्यूस करवाया और ऐसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा। न्यूज़ टुडे लाइव ने भी मेयर सरबजीत कौर जी से बातचीत की और जाना कि उनके पास शहर के लिए आगे की क्या प्लानिंग है। आइए देखें कि क्या खास रहा इस सारी बातचीत में। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਤਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਭੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਲਦੀ। ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਮੈਡਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੈਮ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਕਾ ਔਰ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸੁਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ, ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੋਗੇ, बस इस। राजीव प्रसाद, संयुक्त आयुक्त हूँ मैं नगर निगम में, और 2016 बैच का हरियाणा प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। नमस्कार, NP शर्मा, चीफ इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़। थैंक यू। नमस्कार, मैं विजय कुमार प्रेमी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में हूँ। चंडीगढ़ के जितने वाटर सप्लाई, सीवरेज और अब इसके अलावा जो गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट भी नहीं थे। नमस्कार, मैं इंद्रजीत गुलाटी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर बिल्डिंग एंड रोड्स। मैं बिल्डिंग एंड रोड्स के जो जितने भी कार्य हैं वो देखता हूँ। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं कृष्णपाल सिंह, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हॉर्टिकल्चर और इलेक्ट्रिकल। मैं चंडीगढ़ के सारे हॉर्टिकल्चर के और इलेक्ट्रिकल का
जो कॉरपोरेशन दायरे में आता हो वो मैं लुक आफ्टर करता हूँ। थैंक यू। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਤੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਊਸ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। साहिबान, सीनियर डिप्टी मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे ऑफिसर्स, मीडिया से आए हुए हमारे साथी, आप सबका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्यवादी हैं कॉरपोरेशन के अमले की तरफ से कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। हमने आप सबकी जैसे कि मैडम ने कहा, हमें एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि हम क्या काम करते हैं, हाउस क्या काम करती है, जो वखरे जो अलग अलग कमिटीज़ हैं वो क्या काम करते हैं, काउंसलर साहिबान अपने अपने एरिया में क्या काम करते हैं। तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ज़रूर बनाई है। एज वी गो ऑन मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करती चली जाऊँगी। सो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 1994 में अस्तित्व में आया था। पंजाब का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट है 1976 का, उसे ही एक्सटेंड करते हुए चंडीगढ़ में लागू किया गया था। अगर हम इलेक्टेड बॉडी की बात करें तो इलेक्टेड बॉडी के हेड माननीय मेयर साहब होते हैं। मेयर साहब के अलावा उनके सहयोग के लिए सीनियर डिप्टी मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब होते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि डिलिमिटेशन नई हुई है इस साल। सो उसके बाद 35 हमारे चुने हुए काउंसलर साहिबान हैं और 9 जो है हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर साहब हैं। मानयोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो हमारे कॉरपोरेशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है कि जो भी मानयोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो हमारे काउंसिल का, हमारे हाउस के सदस्य या सदस्य होंगे। इसके अलावा बहुत सारे कमिटीज़ हैं जिनका जिक्र कॉरपोरेशन के एक्ट में किया गया है और कहीं कहीं पे कॉरपोरेशन के एक्ट के अलावा हाउस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक भी बनाए गए हैं। सो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है, एक तो फुल हाउस होता है। फुल हाउस जिसमें कि 35 मेंबर्स होंगे और 9 नॉमिनेटेड काउंसलर साहिबान होंगे और इसकी अध्यक्षता जो है मेयर साहिबा करेंगी। गया है सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी जो उसमें है वो है फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमिटी, जिसको हम साधारण तौर पे FNCC कह देते हैं। कॉरपोरेशन का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम अगर हमने करना है जो कि 50 लाख रुपए तक का है, वो FNCC के कार्य क्षेत्र में आता है। उसकी प्रधान भी मेयर साहिबा होती हैं और उसका जो चुनाव है बाकी मेंबर्स का वो कॉरपोरेशन की पहली हाउस में की जाएगी, जो कि अब 24 तारीख को निश्चित हो चुकी है। इसके अलावा वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिस्पोजल कमेटी होती है। इस कमेटी के पास वाटर सप्लाई और सीवरेज के तहत क्या काम करवाए जाने हैं, उसमें 25 लाख तक के काम सैंक्शन करने का इस कमेटी के पास अधिकार है। रोड्स कमेटी है, जैसे कि नाम से आपको पता लगता है कि सड़कों का जो काम है वो ये कमेटी देखती है। इनके पास भी 25 लाख तक का वो है। उसके अलावा हाउस टैक्स असेसमेंट कमेटी है। जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में बताया है, इस कमेटी ने फैसला नहीं लेना है, इस कमेटी ने सजेशंस देने हैं
जो सजेशंस प्रॉपर्टी टैक्स के संबंध में कॉर्पोरेशन कमिश्नर के राही हाउस के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी हाउस है इन रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या किया जाना है उसके संबंध में। उसके अलावा एनवायरनमेंट एंड सिटी ब्यूटिफिकेशन कमेटी है, इलेक्ट्रिसिटी कमेटी है, अपनी मंडी कमेटी है, फायर सर्विसेज कमेटी है, सैनिटेशन कमेटी है। इन सारे ही कमिटीज का अपर लिमिट काम को सैंक्शन करने का 15 लाख रुपए तक है। ये सारे कमिटीज का गठन जो है वो हाउस की नेतृत्व में और मेयर मैडम के नेतृत्व में अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। इस शहर में कोई भी चीज अगर अलाउड नहीं है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो जहाँ वेंडिंग जोन अलाउड नहीं है वहाँ वेंडर्स है, या कोई एनक्रोचमेंट है, इस तरह के सारे एनफोर्समेंट रिलेटेड कामों को किस तरह स्वरूप देना है उसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमेटी भी है, क्योंकि कॉरपोरेशन अपने आप में काफ़ी सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते होते हैं। इसका भी प्रेरोगेटिव जो है वो 15 लाख तक का है। स्लम्स, कॉलोनीज एंड विलेज डेवलपमेंट कमेटी, इसका भी 15 लाख तक का, जैसे कि आपको पता है कि शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों के इम्प्रूवमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लाइफ के स्तर के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने क्या करना है, या जो अर्स्टवाइल हम कहते हैं जो पहले गांव हुआ करते थे पर अब वो कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर आ चुके हैं, इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई